हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था एंड वी हैड डन अ फ्यू बेसिक थिंग्स. व्हाट इज लर्निंग, द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, इम्पोर्टेंस क्या है, फैक्टर्स क्या है, राइट. टुडे वील बी कवरिंग 3 वेरी शॉर्ट टॉपिक्स जो जनरली शॉर्ट नोट्स में ही आते हैं, राइट. द फर्स्ट वन इज ई लर्निंग. The second is Flander Interactive Analysis, and the third will be ICT. I think all of you please close your books. बहुत ही general topic we'll be doing. We don't need the books for that. Okay. So we'll start with e-learning. We'll start with ICT. ICT. What does ICT stand for? Right. ICT is made up of 3 words: information, communication, and technology. So it's an acronym. Acronym means short form. It's an acronym for information and communication technology. तो इसमें 3 words हैं. Information. Like for instance, अगर we want to search something या किसी चीज की clarity चाहिए, किसी चीज के बारे में we want to seek information about. So we always search it on Google or any other networking site, right? So that is information. Communication. For instance, we have social networking sites like WhatsApp, Instagram. किसी से बात करनी है, right? So that is communication. And technology, we all know that this is a techno-savvy world. आजकल बिना technology के we cannot exist. This world पहले इतना technology नहीं था हमारी lives में integrated, but now we cannot imagine our lives without technology, right? So information and communication technology is a huge term. It's not just about WhatsApp, it's not just about smart boards, or it's a very huge term जिसके अंदर satellites, navigation, maps, everything and anything that is related to technology is included in that, right? So ICT, information and communication technology, if it comes, it will either come in a short answer only. ये long answer में generally नहीं आता है. अगर आएगा तो किसी और question के साथ club होकर ही आएगा. So it will come in a short answer only. Whenever it comes, you can first ये आप बनाएंगे, उसके बाद एक proper definition लिखेंगे ICT की. I'll just tell you. Now you know जैसे पहले इतना ज़्यादा online teaching या technology का use नहीं था, but after COVID came in, we cannot imagine our lives without technology. Schools were shut and we had to switch to online methods of teaching and learning, right? So that was the time जब हमने technology का optimum use या सही use किया and we could make the best out of the situation. वरना for 2 years to not have the education system, we could not have imagined a society. So we used technology in an effective manner. एक अच्छे तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया एंड वी हेल्प्ड एजुकेशन कीप फ्लरिशिंग, राइट. आई एम जस्ट रीडिंग द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक. So ICT stands for Information and Communication Technology. ICT refers to all the technology used to handle telecommunication, broadcast media, intelligent building management systems, audio visual processing, and transmission systems. So I'll just explain you each word. Telecommunication आपको पता है? Yes or no? Yes, the means जो हम use करते हैं for communicating, right? Broadcast media, you know? Yes. अब वैसे broadcast channels भी होते हैं. We have broadcast, right? Then we have audio visual processing. Like we have audio visual aids also, smart boards and everything, right?
and we have the transmission system. So the entire network, ये जो पूरा network है, it is an integrated term for ICT. Okay. Now, what are the characteristics of ICT? ICT में we understand that ICT is made up of both hardware and software, right? ICT is not just, because ICT में information is also there and communication is also there. So it's not just hardware. Like सिर्फ स्मार्ट बोर्ड्स ही या सिर्फ मोबाइल फोन्स ही ICT नहीं है. It's all about software also. So ICT is an integrated term for hardware and software. Okay. Okay, now if we talk about ICT, what is the benefit of ICT? Not only in education, सिर्फ education में ही नहीं, all throughout our lives क्या फायदा है? What is the use of ICT? क्यों चाहिए हमें? Why do we need this communication technology? Yes, because बहुत सारे हमारे जो सेंसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. तो ज्यादा सेंसेस यूज करने के वजह से हमारी जो रिटेनिंग पावर होती है या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. राइट. व्हाट एल्स? सेविंग टाइम. ओके, वेरी गुड. जो कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स थ्योरीज होती है या सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक प्रैक्टिकल मेथड से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें थियोरेटिकल मेथड से जब हम एक्सप्लेन करते हैं, लेक्चर मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, दे डू नॉट कम आउट दैट इफेक्टिव. लर्नर को इतने अच्छे से समझ नहीं आ पाता है. बट व्हेन वी यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट बिकम्स अ लिटिल इजियर फॉर देम टू कॉम्प्रीहेंड. उन्हें समझने में आसानी होती है. दे अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, व्हाट एल्स? ये तो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं. अगर हम आईसीटी जनरली बात करें, फॉर इंस्टेंस वी एक्सक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा हमें क्यों चाहिए होता है आईसीटी? व्हाई डू वी नीड आईसीटी? कम्युनिकेट कर सके. अगर सपोज सम ऑफ, मतलब योर रिलेटिव माइट बी स्टेइंग अवे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो यू नीड आईसीटी टू कम्युनिकेट, राइट? तो इट्स लाइक इट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. दुनिया में लोग इतनी दूर दूर बैठे हैं. वी कैन कनेक्ट, यस, टू मेक दिस वर्ल्ड अ लिटिल, यू नो, व्हाट डू वी से, अ कॉम्पैक्ट सोसाइटी. हम बिखरे हुए नहीं हैं. वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो जब आईसीटी का क्वेश्चन आएगा, पहले वी विल राइट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट? देन यू कैन राइट अ जनरल डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स. उसके बाद किसी भी, वी हैव अ फ्यू डेफिनेशंस इन द बुक, किसी भी एक यू नो फेमस पर्सनालिटी की डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड याद करके यू कैन राइट दैट डेफिनेशन. देन यू विल राइट द यूजेस ऑफ आईसीटी इन डेली लाइफ इन जनरल. हम उसको एजुकेशन से बाद में रिलेट करेंगे, बट टू मेक आवर आंसर सब्सटैंशियल, उसको थोड़ा वेट देने के लिए पहले आप आईसीटी का यूज लिखोगे इन आवर डे टू डे लाइफ. इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू द पीपल. इट मेक्स दिस सोसाइटी और दिस वर्ल्ड अ मोर कॉम्पैक्ट प्लेस. इट हेल्प्स इन पीस एंड हार्मनी. आई थिंक यू नो कि जितना हम कनेक्टेड रहते हैं, इट हेल्प्स इन बेटर हार्मनी एंड पीस, राइट? और क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. यस, अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है, वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, सो वी कैन ऑल्सो सीक इंफॉर्मेशन. हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं. वी कैन फाइंड वेरियस इंफॉर्मेशन और वेरियस नॉलेज ऑनलाइन ऑल्सो, राइट? इट कीप्स अस अपडेटेड अबाउट द वेदर फोरकास्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. सिर्फ नेशनल लेवल पे हमें कनेक्टेड नहीं रखता, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इट कीप्स अस कनेक्टेड and it keeps us updated. Okay, तो हम पहले general ICT का use लिखेंगे in our daily lives. Now we'll write the use of ICT in teaching learning. Okay, so for instance, now you are a learner or you are a teacher. In any case, आपको क्या लगता है क्या यूज होगा? व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी? आई वांट मेनी, मतलब अदर्स आल्सो टू प्लीज रिस्पॉन्ड. मुझे पता है लास्ट क्लास है, मुझे पता है थक गई हो, आई अंडरस्टैंड दैट,
but I will appreciate a more responsive class. जितना पता है, जो पता है, at least participate. Okay? तो ICT का what do you think is the use in a classroom या कोई भी education? Yes. Presentations and videos. Presentations and videos. Okay. अब in presentations and sorry. ये सब जो आप बता रहे हैं, दिस इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी, दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ आईसीटी. तो आप ये हेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ आईसीटी करके भी लिख सकते हो. प्रेजेंटेशंस, ऑडियो विजुअल एड्स, पीपीटीज, स्मार्ट क्लास, व्हाट डू वी से, द प्रोजेक्टर, राइट. ये सब है द स्ट्रैटेजीज और द एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी. व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी? जैसे आपने कहा कि प्रेजेंटेशन इन वीडियोज, हाउ विल द प्रेजेंटेशन हेल्प मी इन टीचिंग लर्निंग? Yes, so that is the use of ICT. कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी है या कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, सॉरी, उसको इजी थी, राइट, उसको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाना. So this is the first use, you know, that it becomes easier for the learner to grasp or to understand concepts. Second, what else? To make the class interesting. Exactly, very good. To make the class more engaging, more interactive and more interesting. जब आप कोई ICT का टेक्निक यूज करते हैं क्लास में, when you go to a class and you use an information and communication strategy, कोई भी strategy आप यूज करते हैं, you will notice that your class will be more interactive and more participative. Okay? What else? ICT is a method जिसमें हम more of student centered होते हैं instead of teacher centered. हम इसमें learner centered होते हैं क्योंकि इसमें we want the best in the learning process. Teaching process में हम इतना focus नहीं होते. We want कि हमने ICT यूज किया है तो जो भी हम समझाना चाहते हैं that is well explained and clear to my students, right? So ICT helps to make the classroom more student centric or learner centric. ठीक है? Okay. Next, it is also a very fast means of learning, fast means of communication, fast means of bonding. आपने देखा होगा जैसे अगर हम स्मार्ट बोर्ड पे राइम्स प्ले करते हैं, when the children they are in the primary classes and when they come to the classroom, तो generally starting के कुछ days जब तक वो adaptation week होता है, we play a lot of common rhymes or songs because that is the way the children bond. So it is a fast means of communicating and bonding with the students also. Okay. What else? Okay, I'll just revise all that we have done. Our ICT में ये भी है कि it is a little, what do we say, cost effective. If in case we are, अगर हमने स्मार्ट बोर्ड पे इन्वेस्ट किया है तो we will get the returns of the investment. So it is cost effective कि जितना हमारा पैसा लगा है वो we are able to derive back from it, वो हम वसूल पाते हैं. Because whenever we are using the strategy, जब भी हम ICT यूज कर रहे हैं तो हमें वो benefits मिलते हैं, वो fruit of installing that ICT वो हम derive कर पाते हैं. Okay? So I'll just read out the points. अगर आपको लगता है कि इस point में कोई clarity चाहिए तो just let me know. Use of ICT in teaching learning process. It acts as a motivating tool. I think it's pretty clear. Next, it provides fast communication. आपको one more point, ICT से हमारी language skills भी बहुत enhance होती है. जैसे for instance, if you're speaking to somebody या अगर if you're talking to somebody, अगर आप presentation दे रहे हैं या सुन भी रहे हैं तो आपकी जो 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, राइट, वो भी इनहांस होती है बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, योर स्पीकिंग स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी बूस्ट. और अगर आप सुन भी रहे हैं तो यू बिकम अ बेटर लिसनर एंड अ पर्सन हु इज अ गुड लिसनर. जो सुनता अच्छा है वो लेटर स्टेजेस पे बिकम्स अ गुड ओरेटर. ओरेटर इज अ पर्सन हु स्पीक्स. सो जो दोज पीपल हु हैव अ गुड लिसनिंग कैपेसिटी, they become good orators also. Okay, so it helps us to enhance our language skills also. It gives an individualization of learning. Individualization, individual, individual
लाई, LISATION, इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमें पता है कि ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम में से कुछ हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, हमने ये किया था, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स मतलब जो सुन के सीखते हैं। हम में से कुछ हैं जो विजुअल लर्नर्स हैं, जिन्हें देख के जल्दी समझ आता है, कि हम कुछ पीपीटी देखते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है। सो आईसीटी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम मल्टीपल सेंसेस को यूज कर पाते हैं। तो इट इज यूजफुल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अगर कुछ बच्चे हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स है तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर कोई बच्चे हैं जो विजुअल लर्नर्स है, so it's beneficial for them also. So it gives an individualization of learning. That means कि अगर individual differences हैं भी, despite that हमारी क्लासरूम में effective teaching learning हो पाएगी। Okay? And ICT is very useful for children with special needs also. I think you know that we have CWSN, that is children with special needs. ये वो बच्चे होते हैं who have a disability or who require special attention and care, like ADHD बच्चे होते हैं। For instance, when you will be going to a real life classroom teaching, because now we have integrated teaching learning, तो हर स्कूल में, हर क्लास में अब children with special needs होते हैं, right? So they require a lot of extra attention, they require a lot of extra effort. So for them ICT is a very helpful technique, क्योंकि वो कुछ होते हैं जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, ना वो बोल पाते हैं ना वो सुन पाते हैं, राइट? या कुछ होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, यू कैन नॉट टैप डाउन देयर एनर्जी, आप उनकी एनर्जी को टैप डाउन नहीं कर सकते हो। सो फॉर देम आईसीटी इज अ वेरी बेनिफिशियल टूल, क्योंकि उन बच्चों को टैप डाउन करने के लिए आपको एडवांस टीचिंग मेथड्स ही चाहिए होते हैं। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, next is interactivity. We have discussed that it makes a class more interactive. The next point is distance and climate insensitive. What does that mean? Right, climate does not, जैसे अब ठंड हो गई है, we have the winter vacations, right? And we might have the extended winter vacations also, जो हम मतलब as a teacher मैं चाहती हूँ कि हो जाए, but let's hope for the best. तो it's like कि अब विंटर्स है, so we might have to shut down schools. But अगर हमारे पास ICT है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है, Zoom classes, you want to say something? Sorry? Distance learning. कैमरा? Online classes चल रही है। अच्छा सॉरी या मुझे लगा यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि टाइम हो गया या समथिंग लाइक दैट। या सो अब जैसे हमारी जूम क्लासेस होती है, सो वी कैन यू नो स्विच टू लर्निंग सिटिंग बैक एट होम या गोइंग टू द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स कैन बी देयर एट होम। तो इसमें डिस्टेंस या क्लाइमेट जो है वो हमारी टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट नहीं कर पाता। जैसे आपको पता है इग्नू प्रोवाइड्स डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज ऑल्सो, ठीक है? उसके अंदर आप कहीं भी हो, कहीं भी इन रिमोट एरियाज, तब भी you can continue your education and keep learning, right? So ICT provides us a way in which distance and climate is not a barrier. वो बाधा नहीं बनते हमारे सीखने में, right? The next is it helps to serve diverse audiences. ये मैंने बता दिया कि अलग अलग audiences होते हैं, अलग बच्चे होते हैं, सबके अलग needs होते हैं। ICT से हम इन सबकी needs को cater कर पाते हैं। Next is uniform quality. Uniform quality means that if in case we have good quality material, जैसे जो हमें सिखाना है that is good quality, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, बच्चा हम जो पढ़ा रहे हैं वो रूरल एरिया में पढ़ा रहे हैं या अर्बन एरिया में पढ़ा रहे हैं, अगर जो हमने पढ़ाना है और जैसे पढ़ाना है वो सेम है, राइट? तो उतना ही इफेक्टिव लर्निंग होगा सब में। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम आईसीटी यूज नहीं करें, सबकी फैमिली बैकग्राउंड्स अलग हैं, तो सबकी जो फैमिली है वो उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देगी लर्निंग के। बट अगर बच्चा क्लास में आ रहा है और वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है and we are using the same method of learning and teaching for them, so it will bring out almost the same fruits or almost the same benefit in all the children, right?
एंड ये तो है ही कि हाई स्पीड डिलीवरी होती है. दिस इज द लास्ट पॉइंट, हाई स्पीड डिलीवरी. दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंटली डिलीवर हो जाती है. ओके Okay, now if in case we consider the various stages of education, like we have the pre-primary and primary education, then we have the middle or senior education, or then higher university level education. तो primary education पे what do you think कि हम कौन से topics हैं जो उन्हें पढ़ा सकते हैं? Generally we are talking जो आपको लगता है कि हम ICT के through उनको पढ़ा सकते हैं. Alphabets, okay, phonetics पढ़ा सकते हैं, और rhymes and poems. It's not poems, I told you the pronunciation has changed, it's poems, right? हाँ जी, poems पढ़ा सकते हैं. और अगर हम थोड़ा मिडिल लेवल या ये जो 8th क्लास तक का होता है, सीनियर सेकेंडरी, उसमें हम कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हम आईसीटी से पढ़ा सकते हैं? साइंटिफिक थ्योरीज है, न्यूटन के लॉज है प्रोबेबली. व्हाट एल्स? Moral values also. We can have moral stories, and that can help the children, imbibe the good values, the moral values. English plays, language में कोई grammatical errors होते हैं जो बच्चे करते हैं, वो हम quiz के through we can help them rectify those errors. So हमने ये समझ लिया है कि ICT can be used at any stage of education. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी लेवल पे यूज कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज कर सकते हैं. हमें बच्चों की नीड के, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स डिजाइन करने हैं. और हमें हमेशा ये याद रखना है कि ICT is only an aid in teaching learning. Aid मतलब it is only helping you. कभी भी it should not become the teacher and you should not be the side material. Okay? हमेशा we have to use ICT in a manner that we are on the prime platform. मतलब हम एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे हैं, and ICT or whatever you are using, a presentation or whatever, that is a tool or an aid in your teaching learning. Okay? Okay, ये थे ICT के advantages, but obviously everything that has a boon has a bane as well. कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान जरूर होंगे. Now, what are the disadvantages of ICT? What are the disadvantages of ICT? आज ही बोलना है. सॉरी. हाँ, इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन आवर आईज. ओके, हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्योंकि इफ इन केस वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और द लैपटॉप फॉर लॉन्ग आवर्स, because of our posture or because of the way we are sitting, it affects our physical health also. Okay, yes. We'll go one by one. She said financial problem. Not everybody and anybody can afford all the techniques of ICT. जैसे होता है कि we are in a constant, society approval वाली चीज होती है कि अभी iPhone 12 है, अब 13 आ गया है, so we want that. But not everybody can afford that. So थोड़ा सा वो finances का भी problem होता है, expenses का भी problem होता है, and ICT is costly. Because ICT is a complete package. उसमें हमें कैमरा भी चाहिए, माइक भी चाहिए, ऑडियो विजुअल का चाहिए, we need a screen, we need a projector, so it is expensive. Okay? Yes. What did you say? Writing help to them. Yes. हमारी writing habit छूट जाती है, because if in case we are more of ICT oriented या हम बहुत ज्यादा वो use करते हैं, so we lose a practice of writing skills. Okay? और इससे ये भी होता है कि आपका सोशल इंटरेक्शन एज इन, आप कुछ लोग होते हैं जो अभी भी दे आर गुड एट टेक्सटिंग, बट व्हेन यू मीट देम इन रियल लाइफ दे आर नॉट दैट गुड इन टॉकिंग. वो नहीं बात कर पाते बिकॉज दे हैव लॉस्ट दैट हैबिट. उन्हें वो बात करने नहीं की जाती, दे डोंट फील दैट कॉन्फिडेंस, या वो वाली हैबिट नहीं होती है. दे आर गुड ओवर टेक्स्ट. जब तक वो सोशल इंटरेक्शन इज from a distance, they are okay. But when it is a face-to-face interaction, they feel lack of confidence, they feel shy. Yes? Lack of interest
to read textbooks or not. Yeah, it leads to a lack of interest in textbooks, distraction हो जाता है. ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ भी ढूंढना है ना, वी विल नॉट रेफर टू द टेक्स्ट बुक्स, या हम एक इन डेप्थ रिसर्च करने की नहीं सोचेंगे. विल जस्ट गो ऑनलाइन, सर्च इट ऑन द गूगल और एनी अदर साइट, and then we'll derive the information. We lose the habit of in-depth research or gathering information. Doubts and fears. Creates doubts and fears. Yeah, elaborate करो. Creates book से नहीं बोला है ना. हाँ, then elaborate. book से बोला है तभी. Yeah, creates doubts and fears कि इसके अंदर जैसे it's all about कि ऐसा कुछ होता है. For instance, अगर एक कोई टॉपिक है, अब आपको पता है, if in case you are searching a topic like island, what is an island, right? तो इतने सारा इंफॉर्मेशन होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सा वैलिड लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है और कौन सा इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट दैट वैलिड, बिकॉज इंटरनेट इज अ पूल ऑफ नॉलेज, वास्ट नॉलेज है, बट हमें ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या नहीं है, राइट? सो इसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सॉरी, कंफ्यूजन हो जाती है. एग्जैक्टली, वेरी गुड. Okay, so I'll just tell you the demerits. It's a distraction, prone to a lot of data security and hacking. आपको पता है बहुत ज्यादा हैकिंग होती है, यस, स्कैम्स होते हैं, अब्यूज होता है. अब तो ट्रोल्स करके बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी हो गया है, राइट? मीम्स बन जाते हैं. सो इट्स ऑल अ डीमेरिट ऑफ आईसीटी. It's expensive. It reduces or leads to a decrease in socialization, जो भी हमने डिस्कस किया कि हम सोशलाइज नहीं करते. या आपने देखा होगा मेट्रो में भी अगर हम वी आर ट्रैवलिंग, एवरीबडी इज सिटिंग देयर विद देयर ईयरफोन्स ऑन, सब अपने गाने सुन रहे, नहीं भी सुन रहे, बट नोबडी इज इंटरैक्टिंग, नोबडी इज सोशलाइजिंग. Yes, this is because of ICT. लोग, we are all looking for people to talk to, people to date, या we are all looking for कि यार सैटरडे को किसी से मिल लेते हैं, सैटरडे तो निकल जाए. So we are all looking for that, but we are not talking to the person who is sitting next to us. We are of that view कि हम socialize नहीं करना चाहते, हम सिर्फ फोन पे socialize कर सकते हैं. So it leads to a decrease in socialization. It is not good for our physical health. I told you it leads to a strain on our eyes, the posture and everything. And it cannot be used by all. Like अभी भी हमारी मम्मा कहती है, मतलब आई नो अबाउट माय मदर, मुझे नहीं पता कि ये देखियो मैंने गलती से अपडेट तो कर दिया स्टेटस, बट पता नहीं चल रहा है. कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारी मदर्स या हमारी थोड़े से जो एल्डर वाली जनरेशन होती है वो करती है कि गलती से वो कोई वीडियो देख रहे थे और गलती से उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया है, और उसके बाद उनको कॉल आ रहा है कि ये क्या लगाया, एंड देन दे आर लाइक यार ये तो मैं देख रही थी, गलती से हो गया है. सो इट इज नॉट इफेक्टिव एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय ऑल. हर कोई यूज नहीं कर सकता है. वी नीड ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग or clarity on how to use it, right? Then it needs electricity and regular maintenance. Obviously, if we don't have ICT, if we don't have electricity, हम ICT के कोई भी चीज को use नहीं कर पाएंगे. It leads to a lot of malpractices also. Like for example, अगर कोई online exam है, so ऐसा होता है कि we can minimize the window and we can open and check the answer on another tab and fill in the answer. तो बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस भी होती है बिकॉज ऑफ आईसीटी, राइट? एंड ये दिस इज द लास्ट पॉइंट, देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन कि हमें पता नहीं व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. सो इट्स अ पूल ऑफ नॉलेज एंड देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन. I'm just making something, don't judge me on this, but I think you can use it, okay? So this is ICT, it has 4 things: communicate,
create, transfer, and the fourth is explore. अगर हमें ICT को sum up करना है या conclude करना है, so ICT is basically all full of this. Communicate, हमें किससे बात करनी है? We have to communicate. Create, for instance, we want to create information. If in case we want to create new knowledge या कुछ भी, so we can create. Transfer of information from one point to another, and explore. Like we have a lot of games, and we explore a lot of information. So ICT is basically these four things: communicate, create, transfer, and explore. ठीक है. अब ICT is basically ICT में ही we will not discuss this too much and elaborate, but ICT is divided into three things: e-learning, m-learning, and online learning. E-learning, m-learning, and online learning. We have done all of it, but हम थोड़ा सा we'll generally discuss and then move on to the next. You want me to shift? Okay. E-learning is an acronym for, ये short form है of electronic learning. Okay. E-learning is electronic learning. Electronic learning मतलब जब हम किसी electronic device like laptop ये use करके when we learn something, that is electronic learning. अगर e-learning पे कुछ आएगा, जो भी हमने ICT में पढ़ा है, the uses, because e-learning is also a subpoint of ICT, right? So what are the benefits आप लिख सकते हैं? It helps us to connect better, it helps us to learn even if we are in a remote area. अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे हम easily schools access नहीं कर सकते हैं, तब भी we can learn and keep growing, right? Formal learning हो सकती है. M learning is mobile learning. Okay. Mobile just does not mean the cell phone. Mobile learning is something that can be carried around, portable, right? Generally, it is used for mobile phones only because mobile phones are easy to carry, handy होते हैं. But it is used for something that is portable and can be carried around. So M learning is mobile learning. It is easy to carry, quick information. Less space is required because if in case you have your phone and you have to learn it, you can easily store it in your pockets or in your handbags. इसका नेगेटिव अगर हम देखें, इसका नेगेटिव होगा कि स्क्रीन स्मॉल होती है तो ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है इस पे, राइट? बेनिफिट्स देखें तो बेनिफिट्स है कि इजीली हम कैरी अराउंड कर सकते हैं, स्पेस रिक्वायर नहीं होती है, वी कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम, राइट? एंड ऑनलाइन लर्निंग, you know, online learning is all about whatever we are doing in COVID, right? Teaching learning when there's no physical interaction, when we are on two different sides of the screen and learning and interacting. ठीक है? So ICT is मतलब it's basically, don't confuse ICT, information communication technology, वो अलग चीज है. These are the three strategies: e-learning, m-learning, and online learning. Okay, that is all for ICT. Take a 2-minute break, let it seep in. Then we will start with a very short and a very general topic, constructivism. पहले ये जो हमने किया ICT देख लो, अगर लग रहा है कुछ नहीं समझ आया है या कुछ है, ICT आएगा, पहले आप जनरल बताएंगे. You'll tell information communication technology, एक डेफिनेशन बता दी आपने, राइट? उसके बाद आपने उसके जनरल बेनिफिट्स बताए इन आवर डे टू डे लाइफ, जो भी आपको लगता है. फिर एजुकेशन सिस्टम में बेनिफिट्स बताए, मेरिट्स, डीमेरिट्स. उसके बाद वो डायग्राम बनाना है, जिसको लगता है कि बनाना है वो बना देना, जिसको लगता है कि बहुत ही वेग है, इट्स ओके. बट मैंने ऐसे डायग्राम्स बना के और ऐसे फ्रेजेस लिख के ही आई हैव स्कोर्ड, बिकॉज द एग्जामिनर फील्स कि बिल्कुल क्रिस्प इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स लिखे हैं: कम्युनिकेट, क्रिएट, एक्सप्लोर, राइट?
So you can make the diagram and then you can write a small conclusion line that, you know, कुछ भी कि we cannot imagine our lives without the use of ICT. ICT has become an integral part in our learning and teaching and all that. ऐसे करके give a brief 2-line conclusion. ठीक है? Sir, what is the difference between e-learning and online learning? E-learning and online learning is basically e-learning. Both are almost same, not exactly the same. E-learning में ये भी हो सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कोई टॉपिक, आपका बीएड का एग्जाम आ रहा है और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट, और आपने वो टॉपिक सर्च किया नेट पे और आपने वो सीख लिया, दैट इज ई लर्निंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. कि आप जरूरी नहीं है वहां पे एक टीचर हो या एक इंफॉर्मेशन फैसिलिटेटर हो, ठीक है, आपने नेट पे डाला और आपने सीख लिया, दैट इज ई लर्निंग. ऑनलाइन लर्निंग इज जब एक एजुकेटर भी होगा, एक लर्नर भी होगा, जब ऑनलाइन क्लासेस होती है. जैसे फॉर इंस्टेंस अभी गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया कि अब हम फिजिकल क्लासेस नहीं रख सकते ऑफलाइन, और अगर फॉर इंस्टेंस आई एम गिविंग यू द और आई एम डिसमेंटिंग द इंफॉर्मेशन, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ थ्रू ऑनलाइन क्लास, तब वो होगी ऑनलाइन लर्निंग. तो इसके अंदर बेसिकली इट्स अ 2 पार्टी सिस्टम. Live class होगी, वो recorded होगी. हाँ, या मतलब इसके अंदर बेसिकली लर्नर सेंटर्ड ही होती है ज्यादातर. इसके अंदर लर्नर अलोन होता है, बट हियर इट्स अ 2 पार्टी सिस्टम जनरली, ठीक है. इसके अंदर लर्नर, फैसिलिटेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब टीचर लर्नर दोनों होते हैं. एक इंटरैक्शन भी होती है ऑनलाइन लर्निंग में. ई लर्निंग इज सिर्फ आपने कुछ भी जो सीखना है वो सर्च किया और आपने सीख लिया. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, ओके. Now we'll do constructivism. It's a very small topic, constructivism. And we have already discussed this in learning, teaching multiple times. The spelling is correct, yeah. Constructivism. Can I start? Okay. Constructivism, as the name suggests, means to construct. To construct. What are we constructing? क्या construct कर रहे हैं हम? Knowledge. So constructivism means to construct knowledge. Constructivism is basically the method of construction of knowledge. This we have done multiple times, but ये ऐसा होता है कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है और थोड़ा सा important भी है. So we are taking it separately as a topic. Constructivism is basically building on knowledge based on your past experiences. ये हमने किया था कि इसके अंदर यही पॉइंट्स हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म में ये हमेशा इसका जो प्राइम सेंटर होता है, जो फोकस होता है, वो होता है लर्नर. जो लर्नर होता है, इट्स द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. लर्नर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर. द लर्नर कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस. किस पे कंस्ट्रक्ट करता है? वो अपने एक्सपीरियंसेस पे कंस्ट्रक्ट करता है. लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके खुद सीखता है. Okay, so constructivism is basically a theory based on scientific study of how people learn. It's basically जो हम कर चुके हैं लर्निंग में, इसका एक साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं constructivism. If you want to note it down, you can. It says that people construct
there, it says that people construct their own knowledge through past experiences. Okay, so we have discussed that construction में because the learner important है, तो हमें ये ensure करना है that we are giving a lot of opportunities to the learner to construct his knowledge, right? हमें एक direct वो नहीं बनना है कि हमने सिर्फ knowledge दे दी और बच्चे ने सीख ली. हमें रियल लाइफ सेटिंग्स रखनी है क्लासरूम में ताकि बच्चा उस सेटिंग को मैनिपुलेट करे, उस सेटिंग में ही डज इट हिमसेल्फ, वो खुद करे और खुद सीखे और अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे. तो इसमें ट्रायल एंड एरर से भी कंस्ट्रक्ट करेगा, इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग से भी कंस्ट्रक्ट करेगा, राइट? सो कंस्ट्रक्ट, जो नॉलेज बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है वो एक ज्यादा बेटर अंडरस्टूड नॉलेज होती है एज कंपेयर टू नॉलेज जो हम बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं. अगर हमने बच्चे को सिर्फ सिखा दिया, बच्चा इतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा. इंस्टेड अगर आपने एक रियल लाइफ सेटिंग क्रिएट की है क्लासरूम में और उससे बच्चे ने सीखा है, तो वो वाली जो नॉलेज होगी जो बच्चे ने खुद कंस्ट्रक्ट की है, दैट विल बी बेटर अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड. ओके, अब थिंक ऑफ अ टॉपिक जो आपको लगता है कि हम कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू क्लास में पढ़ा पाएंगे. एनी टॉपिक जिसके अंदर हमने मतलब वो हम प्रैक्टिकल वे से भी पढ़ा सकते हैं और थियोरेटिकल वे से भी पढ़ा सकते हैं, बट हमने उसे एक बेसिकली एक प्रैक्टिकल वे से पढ़ाया ताकि बच्चा उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए. सॉरी, टाइप्स ऑफ फैमिली कैसे? ओके, ठीक है, उसका रोल प्ले करवा के एंड देन letting the child know about the members of the family, this is the grandfather, this is the grandmother. So इसके अंदर बच्चे ने खुद भी participate किया, बच्चा भी कुछ बना होगा, maybe the brother or the father or the mother. So the child participated and the child was able to construct his or her own knowledge. Yes, तो ये जो knowledge होगी ना, अगर आपने एक बार क्लास में रोल प्ले करवाया, तो ये जो बच्चे ने टॉपिक समझा फैमिली के बारे में, ये उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनेगी. आई डोंट थिंक वो बच्चा भूल पाएगा अबाउट द रोल of a mother or the role of parents in a family. So this will help the child to understand the concept well. Okay, I think मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ. अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ आ रहा है, यू कैन टेल मी. एंड वैसे आई ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, बट इफ इन केस स्टिल अगर कुछ ऐसा लगता है कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है या क्लैरिटी नहीं है, यू कैन एनी टाइम आस्क मी. ओके, यस, व्हाट एल्स? एक और टॉपिक बताओ कोई that you think that we can do it through the process of constructivism. Addition, very good. Addition using real life objects अगर हमने करवाए हैं, आपने नंबर से करवा दिया 2+2, बच्चे ने समझ भी लिया, हो सकता है 60% बच्चों को समझ आ गया, बट आप उनको बोलो कि कलेक्ट some real life objects like leaves or pebbles. रास्ते में घर जाते वक्त you collect them, bring them to school tomorrow, and the next day in the class what you can do, you put 2 objects here. Now put the sign of plus. Now put 2 objects. Now count how many are there in totality. कितने हो गए हैं? 2 + 2 4. तो जब बच्चे ने ऐसे अपनी नॉलेज को किया है, कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा, तो द चाइल्ड बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी जो बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन में या एक रेगुलर जो वर्ल्ड है उसके अंदर अडेप्ट करने में, इजी अडेप्टिंग में हेल्प करती है. ओके, सो यही कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ सिनोनिम्स हैं, लाइक डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर जो लर्निंग होती है वो फैसिलिटेट नहीं होती, बच्चा अपनी लर्निंग को डिस्कवर करता है. यस, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑल्सो opportunity for hands-on activities. Obviously, learning by doing, hands-on activity. Real world setting is provided. Knowledge is constructed. We try to create a real life situation or an environment in the classroom.
इसके अंदर प्रायर नॉलेज या प्रायर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे को अगर पहले कुछ पता होगा या उसका कुछ बेस होगा, तभी वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से अपनी प्रीवियस नॉलेज पे न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा. जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग भी लेते हैं, तो पहले जो नीचे वाला फ्लोर होता है या जो बेस होता है, दैट इज रेडी एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द अप द बिल्डिंग, राइट. तो वैसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे का जो बेस है या बच्चे की जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वो हमें स्ट्रांग होनी चाहिए और वो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को कितना आता है, और उसके बाद ही वी कैन प्रोसीड विद इट. ओके, सो इसके अंदर बच्चे की प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हमने ये कंस्ट्रक्टिविज्म सीख लिया. एज अ टीचर आफ्टर नोइंग कंस्ट्रक्टिविज्म, कि हमें कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने सीखा है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. कुछ फिलोसफर्स हैं जो कहते हैं कि यू नो चिल्ड्रन आर एम्प्टी वेसल्स या चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट्स एंड वी हैव टू पोर इन्फॉर्मेशन, कि उनको कुछ नहीं आता होता और हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है या हमें उन्हें सिखाना होता है. बट ये एक ओल्ड स्कूल है, थॉट है. अब ये नहीं होता. अब ये होता है कि बच्चों के पास, चिल्ड्रन आर ऑलरेडी एम्बॉडीड, या उनके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी. क्या हुआ? ओके, तो ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही एज अ टीचर हमें न्यू इंफॉर्मेशन को बिल्ड ऑन करना चाहिए. तो एज अ टीचर नाउ यू नो अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है. फॉर इंस्टेंस नाउ यू ऑल, आई थिंक सबको थोड़ा सा क्लियर तो हो ही गया है. नाउ व्हेन यू गोइंग टू अ क्लासरूम, इस थ्योरी को जानने के बाद आप अपनी क्लास में क्या करेंगे, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक केयर ऑफ, क्या पॉइंट्स है जो आप दिमाग में अपने रखेंगे कि मुझे, मतलब दिस इज समथिंग आई हैव टू मेक श्योर. Very good. The first and foremost thing, we will always test the previous knowledge. As a teacher, मुझे पता है अगर मुझे कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि व्हाट इज माय चाइल्ड्स मेंटल एज, या अभी उनकी कॉग्निशन कहाँ तक पहुंची है. सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज नोइंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड. ठीक है. नाउ वी हैव नोन अबाउट द इंफॉर्मेशन, वी हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन कि मेरे बच्चों को इतना आता है. नाउ व्हाट? हम प्रीवियस नॉलेज को, जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले उससे प्रीवियस नॉलेज विल ऑल, हाँ, जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड ही होगा. बिकॉज अगर सपोज हमें एडिशन पढ़ाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों को 1 to 20 या 1 to 50 काउंटिंग आती है. They know the numbers, they recognize the numbers, only then I'll be able to proceed with the addition, right? I guess you were saying something, I could not. वेज की कैसे पढ़ाना है वही तो आप बताएंगे. अब आप टीचर बन चुके हैं. नाउ यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. तो अब क्या वेज हैं, आप कैसे पढ़ाएंगे? We will elaborate, but this is what I'm asking. How? That is the entire question. How? Like you said कि हम बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे, करिकुलम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और हम पढ़ाएंगे बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज देके जिसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज कम हो, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल इंटरैक्शन. मतलब जैसे आपने क्लास में अपनी क्लासरूम को 4 कॉर्नर्स में डिवाइड कर दिया कि ये एक ब्लॉक कॉर्नर है, ये लैंग्वेज कॉर्नर है, ये मैथमेटिक्स एंड मैनिपुलेटिव कॉर्नर है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. और आपने आज बच्चों को बोला कि आज टुडे यू हैव 1 hour ऑफ फ्री टाइम. ठीक है. इसके अंदर यू कैन चूज एनी 1 कॉर्नर जो भी आपके इंटरेस्ट का है, एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. वहां पे आपने ऑलरेडी एडिशन से रिलेटेड टॉयज रखे हुए हैं. ब्लॉक्स कॉर्नर है तो बिग टू स्मॉल आपने ब्लॉक्स रखे हुए हैं. आप उनको बता नहीं रहे हैं क्या करना है. You've just given them that time. तो you are giving them that opportunity to construct their knowledge. अगर आपने उनको बता दिया कि ये this is how it has to be done, तो उसकी वजह से आपने उनकी जो कॉग्निशन है या आपने उनकी जो इमेजिनेशन है या जो उनका असली पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. जब आप उनको एक फ्री इन्वायरमेंट में रहने देंगे या यू लेट देम लूज, तो जितना वो सीखेंगे उतना तो सीखेंगे, उसके अलावा 2 चीजें एक्स्ट्रा भी सीखेंगे. राइट. सो जैसे आपने कहा कि we'll give them the opportunity, we have to create an environment जिसके अंदर
उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। आपको कोशिश करनी है कि आपके क्लासरूम में ऐसे प्रॉब्लम्स आप पोज करो जो उनके रियल लाइफ सिचुएशन से, उनकी रियल लाइफ सेटिंग्स के साथ रिलेटेड हो, कंबाइंड हो, ठीक है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा वेग ना हो, बहुत ज्यादा व्हाट डू वी से एब्स्ट्रैक्ट ना हो, कंक्रीट हो, और ऐसा हो जो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से, उनके सराउंडिंग्स के साथ कोरिलेट करता हो, ओके। एंड अगर हम न्यू नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस नॉलेज को रिवाइज करते रहें ओवर अ फ्यू क्लासेस, ताकि वो नॉलेज जो है वो अच्छे से, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार क्लास में एक टॉपिक करवा दिया एंड स्ट्रेट बच्चे के माइंड में चला गया और क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म को टाइम लगता है, यू हैव टू मेक वेरियस एफर्ट्स। आपको अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग मेथड से यू हैव टू इंश्योर कि बच्चे को वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया और बच्चे ने उस टॉपिक को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, द चाइल्ड इज अंडरस्टूड इट, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर हम 3 मेन वर्ड्स में इसको सम अप करें, it's basically practical knowledge. First is practical knowledge. Second is learning by doing. And the last is child centered. क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का रोल फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन है, उसे बस यही देखना है कि बच्चा सीखे, बच्चा कंस्ट्रक्ट करे। सो चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। नाउ इसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है फ्लैंडर इंटरैक्टिव एनालिसिस, वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है। सो आई वुड वांट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू इट, ताकि नेक्स्ट क्लास में, अभी वैसे वी स्टिल हैव, मतलब इट्स 1:30, आई थिंक यू कैन टॉलरेट मी फॉर 5 minutes मोर। किसने कहा नो? ठीक है, just a sec. It's on page 122 in Thakur. It's too much theoretical, like, it's about a person, Flander, who was given an interaction analysis. So I want you to go through it, ताकि next class में, before proceeding with the next class, हम पहले थोड़ा सा brief में 10 minutes we'll talk about it. And then we'll start with unit 4 हम start करेंगे evaluation. Unit 1 and 3 we've already done, except for this topic Flander Interactive. So next class में we'll start the class with that, and then we'll start with unit 4 evaluation. ठीक है?